ये जो हमने रिलेशन निकाला ना, ये एक्चुअली मैट्रिक्स इक्वेशन है ये, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। और नेक्स्ट क्लास में, इफ यू रिमाइंड मी, आई विल शो यू द 3-dimensional application of this. I'll show you how matrices come into vectors, how matrices are a natural progression to vectors. Okay, so lecture 3 and I think 4 you have to complete. Lecture 3 and 4 you have to complete. Next class mein we'll be finishing dot products. Okay. और कोई doubt? Any other doubt? 3 and 4 you submit by Thursday. 2 दिन में हो जाना चाहिए. Thursday को submit कर देना. Thursday evening. 2 नहीं किया है क्या अभी? 2 क्यों नहीं किया अभी? अच्छा, मैंने बोला ही नहीं था क्या? तो 2, 3, 4. Multiplication of vectors tomorrow. Yes. ठीक है. For those of you who are new to me, my number is 9699398976. Okay, I'll be available on WhatsApp with this number, message or call. And my name is Kumar. Take a screenshot, please, and I will. The lecture will be put on YouTube. The recording of the lecture will be put on YouTube. अमनश्री सर को भेज दो. अमनश्री सर को भेज दो. Slides तो मैं भेज दूंगा, but recording better रहेगा नहीं. I'll send the slides. चलो, okay, bye bye. Yes. So for y equals to 2 sin x plus 3 cos x, to convert this expression to sin a cos b plus cos a sin b, let's make a right angle triangle and see what I'm doing. Sin b equals to 3 नहीं हो सकता, right? But sin, suppose this angle is b. So in this right angle triangle, we can choose this opposite side to be 3. ऐसा तो हम assume कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं. And then cos b should be equal to 2, not cos b. Cos b 2 नहीं हो सकता. But हम इस adjacent side को तो 2 ले सकते हैं. And then choosing the right hypotenuse using Pythagoras theorem, this is equal to root 13. इसको root 13 assume कर लें, तो हमको पता है कि ठीक है, sin b 3 नहीं है, but sin b 3 by root 13 तो हो सकता है. cos b 2 नहीं है, but 2 by root 13 तो हो सकता है. तो यहाँ से ये ट्रिक आती है कि let's divide and multiply by root 13. What is root 13? Root 13 is simply hypotenuse of this right angle triangle formed by coefficients of sin x and cos x. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो, 2 by root 13 into sin x plus 3 by root 13 into cos x. And अब देखो यहाँ पे आ गया y equals to root 13 into, देखो मैं इसको sin x, what is 2 by root 13? According to our diagram, in this right angle triangle, it is cos b. और 3 by root 13 is sin b. So you can see कि हमने हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया. Now we have a single expression of trigonometry, single function of trigonometry, sin of something लिखा हुआ है, ठीक है, वो x plus b लिखा हुआ है. b is anyways constant. इस right angle triangle में कोई constant angle है, वो x में ऐड हो गया है. चाहे वो sin x हो, चाहे वो sin 2x हो, चाहे वो sin x plus b हो, कुछ भी हो. साइन की रेंज, साइन की जो रेंज है, साइन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, वो -1 to 1 है, ये हमको पता है. तो फिर व्हाट अबाउट y? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? minus root 13. And what is the maximum value of this expression? It is plus root 13. और तुम देख सकते हो तुम्हारा जो गेस था उससे हम कितने आगे आ गए. root 13 is approximately what? 3.5 से भी बड़ा है ना ये? हाँ, 3.6 से भी इनफैक्ट बड़ा है ये. 3.6 समथिंग होगा ये, है ना? तो ये
इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता। फॉर रियल वैल्यू ऑफ x इट कैन नॉट एक्सीड √13। तो Sir, why बेसिक sin A plus B? व्हाट अदर ऑप्शन डू वी हैव? cos a minus b, वो भी हम कर सकते थे। मतलब तुम क्या पूछ रहे हो कि sin a plus b ही क्यों, मतलब कुछ और क्यों नहीं यूज किया? तो हम Yes, cos a sir. plus b भी यूज कर सकते हैं। आई कैन यूज Okay. cos a plus b also, बिकॉज देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल स्विच करना है इस cos 2 a को। minus b हाँ व्हाटएवर, cos a minus b plus b जो भी आ जाए, मतलब cos का फॉर्मूला भी आ सकता है sin की जगह पर, है ना? तो Okay, sir. अब देखो थियरी क्या है, थियरी क्या है, और जब मैं बता लूं तो मुझे फिर जो नए बच्चे बताएंगे कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया। तो थियरी ये है, टू फाइंड द रेंज ऑफ a sin x plus b cos x, टारगेट ये है कि हमको sin a plus b बनाना है, या फिर cos a plus b cos a minus b जो भी बनता है वो बनाना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल सपोज दिस एंगल इज थीटा, इसको थीटा अज्यूम कर लिया मैंने। अब तुम अगर sin plus b से कंपेयर करो इस फॉर्मूले को, तो इट इज sin x, इट इज sin a, एंड व्हाट इज मिसिंग इज cos b। cos b जो है वो तो a नहीं हो सकता, cos थीटा a नहीं हो सकता, बट एडजेसेंट साइड को हम a अज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली cos a sin b, sin b को हम b तो नहीं मान सकते, बट हम ऑपोजिट साइड को b अज्यूम कर सकते हैं। एंड इन दिस right angle triangle definitely hypotenuse will become root over a square plus b square, and this is the trick. Trick is to multiply and divide by root over a square plus b square, right? ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जस्ट लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल जो हमने क्वेश्चन में किया, ये आ जाएगा a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin x, और ये हो जाएगा b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos x। और आगे की तुम्हें स्टोरी बताइए, a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज cos थीटा, तो ये हो गया, सॉरी इसको हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। So sin x into cos theta plus cos x into sin theta, or multiplied by root over a square plus b square, and then this is root over a square plus b square into sin x plus theta. And once again we'll write the same thing, is sin of any real value, चाहे वो x हो, x plus theta हो, 2x हो, कुछ भी हो, it lies between -1 and 1. So the range will be, भाई तुम उसको रखोगे मिनिमम यानी -1, तो आएगी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स इट। सर वो ट्रायंगल वाला पार्ट थोड़ा सा हाँ ये मैं भी explain करो। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब सबसे पहले वो लोग भाई जो लोग ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री जो नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा तो टास्क डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं। देखो हमने कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं यूज की, हमने कोई प्रोडक्ट टू सम, ट्रिपल एंगल, डबल एंगल, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। हाँ मैंने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज किया जो तुम्हें आता है, और रेंज का मैंने तुम्हें मतलब बताया। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है किसी एक्सप्रेशन की जो कि तुम कैलकुलस थोड़ा बहुत कर चुके होगे फिजिक्स में, कि तुमने किसी चीज को डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, वो सब तुम क्यों कर रहे हो? यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सेम थिंग, वही चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, a sin x plus b cos x के लिए। फाइन, तो ट्रिक क्या है इस एग्जांपल में? इस एग्जांपल से समझो, वो तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वो फॉर्मूला हम याद रखेंगे, बस इस एग्जांपल में समझ में आएगा कि हमने क्यों वो ट्रायंगल बनाया, क्यों हमने सारे काम किए। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि हम इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव टू फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम एक की वैल्यू चेंज करते हैं, दूसरा भी चेंज हो जाता है, सो वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। रास्ता क्या दिखा हमको कि इन दो फंक्शंस को क्लब किया जाए। वी वांट अ सिंगल फंक्शन फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो ये करने का रास्ता दिखा हमको कंपाउंड एंगल से, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर टर्म दिखाई दे रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऐसे दिख रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक साइन और यहाँ पे एक कॉस है, जो कि होता है साइन ए कॉस बी, कॉस साइन बी। तो फिर मैंने जब जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें बताया, उस राइट एंगल ट्राइंगल का पर्पस ये था कि अगर हम इसको साइन ए प्लस बी में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि साइन एक्स तो चलो साइन ए बन गया,
साइन एक्स को मैंने साइन ए अज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं, बट मैं कॉस बी को 2 अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज कॉस बी जो भी होगा वो 1 से छोटा होगा, इट कैन नॉट बी 2। सिमिलरली अगर मैंने कॉस बी को 2 अज्यूम नहीं कर सकता तो साइन बी को मैं 3 अज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन इट शुड बी ग्रेटर देन 1। और इनफैक्ट अगर एक 1 से छोटे होते भी तो भी हम इनको साइन बी और कॉस बी अज्यूम नहीं कर सकते थे, बिकॉज तुमने अगर कॉस बी फिक्स किया तो साइन बी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए we formed a right angle triangle. In this right angle triangle, because we wanted cos b to be in terms of 2, right? 2 तो हमें utilize करना ही था. So we took adjacent side to be 2 in this right angle triangle. And in this expression, you can see you want to relate sin b with 3. So we took opposite side to be 3. Obviously, then we don't have any random choice for hypotenuse, because once you have two sides of this right angle triangle, third side is automatically fixed, so it is root 13. And the next step was to multiply and divide by this root 13 and see what happens. 2 by root 13. 2 by root 13 becomes sin b, which we wanted, and 3 by root 13 will become sin b. So sin x cos b, sin b cos x. ये क्लब होके sin x भी बन गया और हमारा आंसर आ गया माइनस रूट 13 टू प्लस रूट 13। टेल मी, अब बताओ किसी को डाउट है इस चीज में? समझ गया सर। समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, तो अब तुम्हें इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करना है और उसको अब तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करना है। दैट मींस स्टेटमेंट इज के ऊपर लिखा ही हुआ है लेकिन मैं फिर लिख दे रहा हूँ कि range of a sin x plus b cos x where x can be any real value is जो ऊपर लिखा है minus root over a square plus b square 2 plus root over a square plus b square। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। आओ चलो इस पर हम लोग जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर नॉन रियल नंबर्स इंक्लूड करने में प्लस माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। नाइस। किसने बोला भाई ये? कौन सा बच्चा था ये? सर शिवेन क्या पता है अभी नॉन रियल नंबर्स के बारे में? सर नॉन रियल नंबर्स अगर हम मतलब अगर हम इस केस में नॉन रियल नंबर्स कंसीडर करें तो a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब a का होल स्क्वायर नेगेटिव भी आ सकता है, बट नहीं वो उसमें फिर बात a और b की नहीं है, मैंने बात x की है। x रियल होना चाहिए, ठीक है? अगर x रियल, अगर a और b इमेजिनरी है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो रेंज का मतलब ही नहीं। साइन x की रेंज -1 to 1 होती है फॉर अ रियल एंगल। अगर ये चीज इमेजिनरी हो गई, ये नॉन रियल हो गया, जो कि अभी डिस्कशन करना नहीं चाहिए, मैं वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, if you take sine of an imaginary angle, an angle which is not real, now the value can go beyond 1. sin थीटा 1 से बड़ा हो सकता है अगर थीटा इमेजिनरी हो, बट वो चीज हमने भी अभी नहीं पढ़नी स्टार्ट की, बहुत देर बाद आने वाली। तुम शायद ए और बी की बात कर रहे हो, राइट? ए और बी तो अलग ही चीज हो गई। ए और बी को अगर तुमने इमेजिनरी कर दिया या ए और बी में कुछ ए स्क्वायर नेगेटिव आ गया, वो कुछ और आ गया, तो रेंज का मतलब ही नहीं है ना। रेंज का मतलब हमेशा रियल नंबर सिस्टम में होगा, रियल एनालिसिस में होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रेंज का, इमेजिन नंबर्स में रेंज का मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन। इमेजिन नंबर्स में कंपैरिजन नहीं होता बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो शिवन ऐसा नहीं है। yes. लेकिन हाँ, ये तुम सही कह रहे हो कि साइन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच सकती है, साइन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है अगर एक्स इमेजिनरी हो। ठीक है, चलो तो मैं जो पहला, स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा और ऊपर, और पर हाँ बस हो। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली आंसर यूज करो। ठीक है, इसको याद करो, आंसर यूज करो। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन बहुत ही मैं सिंपल दे रहा हूँ, सभी से होना चाहिए। 3 sin x minus 4 cos x, find the range, find the range of 3 sin x minus 4 cos x। 5 to -5. -5 to 5। करेक्ट आंसर।
विदाउट मच एफर्ट तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। गलती से -4 का स्क्वायर -16 मत कर देना, ये बहुत लोग करते थे पहले। -4 का स्क्वायर +16 ही है, और ये आ जाएगा -√9 + 16 to +√9 + 16. So answer is -5 to +5. We're done. ठीक है, मजा आ रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मजा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया तो उससे अच्छा क्या हो सकता है लाइफ में ना। व्हाट अबाउट 2 sin 2x + 3 cos square x -1? Is this question related? क्या ये क्वेश्चन इस थियरी से रिलेटेड है जो हमने पढ़ी है अभी? देखो -1 तो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर रहा, राइट? -1 is something which is not bothering us. -1 is a constant. What may bother us is these two terms because they are variables. Now we have derived a formula to find the range of a sin x plus b cos x. Something into sin x plus something into cos x. But this looks different. ये वो चीज तो नहीं। Told you many times. Think like a mathematician. A new problem, if can be converted to a problem which we have already solved, a new problem is also solved. That means कुछ नया नहीं सोचना है अभी तुम्हें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसी कैटेगरी का है, क्लासिफिकेशन उसका सेम है। Can you convert this problem into this expression, into this a sin x plus -3 से +3? -3 to +3? Okay, don't think so. No, कैसे आया ये? सर वो cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 θ/2। ये तूने सही किया, फिर क्या गड़बड़ हो गया? sin 2x और ये देखो भाई, सभी लोग देखो, ये डबल एंगल फॉर्मूले भी तुमने आई थिंक पढ़े होंगे, सभी ने पढ़े होंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वहां से हम यहाँ पे आए और इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 sin 2x प्लस 3/2 cos 2x और 3/2 -1 इज हाफ। सर हम्म आंसर क्या 2 कॉमा 2 टू -3 है। 2 कॉमा क्या 2 टू -3 2 to -3? अच्छा देखते हैं, देखना पड़ेगा भाई आंसर। सर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था बीच में। कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारा था प्रतीक्षा, इसका मैं देखना पड़ेगा। नहीं भाई, आई थिंक 5/2, हाँ 3 तो तेरा सही है, 3 तेरा सही है, और माइनस और क्या आया था आंसर? 3 और मैक्सिमम 3 आया था, मिनिमम क्या आया था? सर -2 होगा मिनिमम। -2, करेक्ट करेक्ट है भाई, तुम्हारा आंसर सही है। वेरी गुड, वेट। तो तुम इस एक्सप्रेशन को देखो, ये देखो, हमने केवल डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके क्या अचीव कर लिया? हमने डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके इस एक्सप्रेशन को अब a sin x, अरे डजंट मैटर, यस 2x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी तो 2x लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम 2x को a लिख देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? 2 sin a प्लस 3/2 cos a प्लस हाफ। तो ये चीज बन गई ना सिमिलर टू a sin x प्लस b cos x, राइट? तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी सीखो, ठीक है ना। ये चीज डायरेक्टली नहीं आएगी जेई में, अगर आएगी तो मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन आया तो कुछ ऐसा आएगा, वो भी मैं मेन की बात कर रहा हूँ, एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अब? -√a², दिस इज a यानी 4 प्लस इसका स्क्वायर 9/4 और प्लस हाफ ऑलरेडी वहां लिखा हुआ था, लिखा रहने दो। इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा -25/4 -5/2 प्लस हाफ, and this is -2. What about the maximum value? Only change इसको प्लस करते हैं, +√a² + b²। +3
यस, तो इसको तुमने कैलकुलेट किया और ये आ गया 5/2 plus half. So your answer is, any range is -2 to 3. करेक्ट? तो भाई इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि देखो पॉइंट अलग से लिख लेते हैं, that use these formulas. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे cos square x को क्या रिप्लेस किया, 1 plus cos 2x/2. यूज डबल एंगल फॉर्मूला बिकॉज तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर है, यहाँ पे देखो कहीं पे स्क्वायरिंग नहीं, तो in case you want to remove square you can always use double angle formula. Similarly, if you have sin square x, remove it using 1 minus cos 2x/2. I hope सबको डबल एंगल फॉर्मूला पता है, सभी को cos 2x का फॉर्मूला पता है. और if you have suppose sin x into cos x, ऐसा कुछ आता है तो it is definitely sin 2x/2. So use this to convert a second degree term to a linear term. As long as these angles are same, we can always apply the formula. जब तक ये एंगल सेम है हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और ट्राई करते हैं. sin x into sin x plus cos x. Find the range. And don't worry, those who have a very first lecture of trigonometry, बिल्कुल परेशान मत हो. ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी स्क्रैच से स्टार्ट होगी, वापस पढ़ाऊंगा मैं और वापस हम इस पॉइंट पे आएंगे. ये बस एक पॉइंट मिस हो जाता है इसलिए आज मुझे पढ़ाना पड़ता है, फिर हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देंगे. सर -1 to 1 नहीं बेटा, -1 to 1 नहीं. आपने क्या किया होगा मुझे पता है. सॉरी सर गलती हो. कोई नहीं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये हर बार होती हैं. Three by four to -1/4. 3/4 to -1/4. मतलब -1/4 to 3/4 you're saying. हाँ सॉरी है ना? सर. -1/4 to 3/4 कैसा गया प्रतीक्षा? सर sin square x को बदला और sin x cos x को चेंज किया. 1 minus cos 2x/2 और गुड. लेकिन उसमें रूट कुछ आया होगा ना यार, मतलब रूट नहीं आएगा. देखते हो कैलकुलेशन में कैलकुलेशन सब कुछ सही कर रही है, फिर कैलकुलेशन भी सही कर देती है. देखते. यहाँ पर √2 + 1/2 और √2 1 minus √2/2. करेक्ट, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए. यहाँ पता है मिस्टेक क्या होती है, लोग इसको देख लेते हैं और उनको थोड़ा सा दे फील ग्रीडी कि हाँ sin x plus cos x दिखाई दे रहा है, लेट्स यूज द फॉर्मूला. दे टेंड टू इग्नोर sin x कि बाहर sin x लिखा हुआ है, sin x तो मैक्सिमम 1 होता है, हमको पता ही. तो ऐसा मत करना, बिकॉज sin x plus cos x को अगर तुम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे इग्नोरिंग दिस sin x, it will be wrong, because sin x plus cos x को तुमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया तो sin x भी फिक्स हो जाएगा. sin x को तो अपने हिसाब से ऑल्टर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर a sin x plus b cos x लगा रहे हैं तो तुमको पता है कि फॉर्मूले से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी. फॉर व्हाट? x की किस वैल्यू के लिए √2 बनेगा तुम गेस कर सकते हो. π/4 sin 45 plus cos 45 डिग्रीज 1/√2 plus 1/2 √2 हो जाएगा. बट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है sin x की वो 1 होती है. तो कैन वी राइट इसको √2 और इसको 1? नो, वी कैन नॉट राइट दिस, बिकॉज जिस मोमेंट पे जब ये √2 बन रहा होगा तो ये 1 बन ही नहीं पाएगा. जब इस एक्सप्रेशन की तुम मैक्सिमम निकालोगे तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो ही नहीं पाएगा. राइट? तो हमको ये चीज अवॉइड करनी होगी. वी कैन नॉट लुक एट दीज एक्सप्रेशंस सेपरेटली. जब भी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी अलजेब्रा हो, है ना, उसको पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद सोचना है. तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि फर्स्ट यू मल्टीप्लाई sin square x plus sin x into cos x. And then what I told you earlier, use this formula. Sin square x is 1 minus cos 2x
whole by 2. And similarly for sin x cos x, it is sin 2x whole by 2. And once again, you have reached to same type of expression. देखो आ गया हमारे पास a sin x plus b cos x. Yes. 1 हाँ बेटा. plus root 2 by 2 comma 1 minus root 2 by 2. Correct. Very good. कौन है भाई? उत्कर्ष है क्या? उत्कर्ष को कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम? मे बी. चार आईडीज कैसे आ रही है भाई? ओके. minimum value of this expression. अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी है. It is 1/2 1 and this is a sin x plus b cos x. Then minimum value is minus root over a square. A is what? 1 coefficient. B is what? Minus square and add 1 plus 1 2 root 2. तो ये हो गया minimum. And what is the maximum value? 1/2 times 1 plus root 2. ठीक है? बताओ मुझे समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो I'll explain it number of times you want. Don't worry. हमें कोई जल्दी नहीं है. सर हाँ. इधर आपने हाफ कॉमन लेने वाले स्टेप में प्लस और माइनस साइन कैसे चेंज हुआ सर? नहीं मैंने कुछ नहीं किया. देखो ना बेटा ये माइनस तो cos 2x पे था ना, तो मैंने माइनस cos 2x ही लिखा हुआ है. मैंने केवल इन दोनों टर्म्स को शफल किया. मैंने sin 2x को पहले लिख दिया और cos 2x को बाद लिख दिया. दैट्स इट. ओके सर. ये वही एक्सप्रेशन है राइट. केवल इसलिए तुम्हें दिखे वो a sin x plus b cos x में लिखा था इसलिए sin को पहले लिखा है, तो भाई cos पहले लिखोगे उससे फर्क पड़ता नहीं. ओके भाई, तो रेंज हो गई तुम्हारी. तुम चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो. इट इज 1/2 minus root 2/2 यानी 1/√2 to 1/2 plus 1/√2. ये तुम्हारा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी मैं छोड़ दूंगी ना, जब तक एक भी बंदे को डाउट आएगा अभी जो है क्वेश्चन हम करते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 upon 2 sin x. क्या हो रहा है भाई? नहीं कर पा रहा है ये ज्वाइन. 1 upon 2 sin 2 sin square x. 1 upon 2 sin square x plus 4 cos square x plus 6 sin x cos x. 6 sin x cos x and plus 4. Plus 4. Find the range of this expression. 1 upon 2 sin square x plus 4 cos square x plus 6 sin cos x 6 sin x cos x plus 4. इस एक्सप्रेशन की तुम्हें रेंज निकालनी है. चलो ट्राई इट योरसेल्फ. अपने आप ट्राई करते हैं. This question is again related to the theory we have just studied. जो theory हमने पढ़ी अभी, and that is the range of a sin x plus b cos x is minus root over a square plus b square to plus root over a square plus b square. सर आपने लास्ट में cos क्या लिखा? Cos x है बेटा, वो cos x. Cos x और लास्ट में वो प्लस 4 है. cos x के बाद ये प्लस 4. minimum range Sorry? minimum range है -1 by root 10 plus 7. Okay.
आंसर तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे सॉल्व करके, पर तुमने और किया तो वही होगा ना। 1/7 प्लस रूट 10 और 1/7 माइनस रूट 10। अच्छा भाई ओके हाँ सर वही है। ओके 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखा होगा 2 साइन Yes. स्क्वायर x को, है ना। 4/2 सॉरी बाई 2 तो कैंसिल हो गया ना, ओनली 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 कैंसिल हो गया। ऐसे ही 4 इंटू कॉस स्क्वायर x को लिखा तुमने 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, चलो बाई 2 लिख देते हैं, बाद में कैंसिल कर देंगे। and this thing is 3 sin 2x and plus 4, राइट। हमने यही तो किया। 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 से 4 कैंसिल करो, and y equals to what do we get? First look at constant term, 2 into 1 2 plus 1 3 plus 4 7 and plus 3 sin 2x and 2 cos 2x minus cos 2x will become cos 2x. So if I look at denominator only, right, अभी तो ये 1 upon में आ गया। What is the range of denominator? Denominator की range क्या है? तो denominator में तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन है ना, a sin s plus b cos x। हमको पता है कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 7 माइनस रूट ओवर 9 प्लस 1 10, 7 माइनस रूट 10, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 7 प्लस रूट 10, राइट। तो फिर क्या होगी रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन? सो माइनस इंफिनिटी 1/7 प्लस रूट 10 1 upon 7 plus root 10 to 1 upon 7 minus root 10, कि 1/7 and don't have any doubts about it. Root 10, 1/7 minus root 10 would be greater than 1/7 plus root. yes. So whenever denominator is smaller, obviously this fraction becomes greater. Denominator अगर बड़ा है तो fraction बड़ा है, छोटा है, और denominator छोटा है तो fraction बड़ा है। तो तुमको पता होना चाहिए अगर आपने denominator end की में जब plus तुम four ना दिया होता तो स्क्रॉल करिए ना। wait कम 1 by 1, हाँ क्या बोल रहे हो? सर अगर आपने डिनोमिनेटर में +4 ना किया होता तो एक नेगेटिव आता एक पॉजिटिव आता। +4 ना किया होता तो वो सिचुएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। गुड क्वेश्चन, बट सर इस थोड़ा क्वेश्चन में ये ऊपर दोनों, स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ यहाँ तक हो गया, थैंक यू। ओके। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है उसका कि अगर यहाँ पर ये 4 ना होता तो क्या होता, तो उस बारे में डिस्कस करेंगे हमें। लेकिन मुझे पहले बताओ कि ये चीज तो समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर की हमने जब मिनिमम वैल्यू डाली जो कि पॉजिटिव है, तो हमको रेंज जो एक्चुअल रेंज निकाली थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, और जब हमने डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू डाली तो हमको इस रेंज की मिनिमम वैल्यू मिल गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला कि कोई एक्सप्रेशन है, मान लो 2 से 3 के बीच, मान लो x है 2 से 3 के बीच में, x बिलोंग्स टू 2 to 3, देन टेल मी अबाउट 1/x। 1/x कहाँ पे होगा, 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आराम से तुम बता सकते हो। 1/2 to 1/3. yes it lies between 1/3 to 1/2, because 3 is obviously a greater value, it comes in denominator, this value becomes smaller, तो ये 1/3 से 1/2 के बीच में, ना कि 1/2 to 1/3। तो ये तो खैर सबको बेसिकली पता ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और अभी भी जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन सेम नहीं बट सिमिलर प्रॉब्लम जेई एडवांस की, तुम जब जेई के आर्काइव्स वाले क्वेश्चन करोगे यू विल गेट अ सिमिलर प्रॉब्लम। आई थिंक 2000 पुरानी प्रॉब्लम, 2005 की पहले या 7 की पहले की प्रॉब्लम है, बट है वो भी जेई एडवांस की बात करो, मेन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, ठीक है। और बस अब एक और सिचुएशन डिस्कस करनी थी मुझे, जो उसने भी देखो अभी उसने बोला कि अगर यहाँ पे 4 नहीं होता, एवरीथिंग इज सेम, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 4 6 रखते हैं, y equals to 1 upon 2 sin square x plus 4 cos square x and plus 6 sin x cos x. The only change is this time we do not have that constant here. मैंने जो 4 लिखा था, that 4 is not here, ठीक है। चलो फाइंड मी द आंसर।
एग्जैक्टली सेम टर्म्स भी लिए मैंने, कैलकुलेशन भी नहीं आएगी तुम्हारी कुछ खास। माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 माइनस रूट 10 टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 माइनस रूट 10 1 अपॉन 1/3 माइनस रूट 10 यूनियन didn't get you minus in union minus infinity to 3 minus root 10 union सर 1/3 माइनस रूट 10 correct 1 upon 3 minus root 10 union 1 upon 3 plus root 10 to infinity यस सर correct answer very good very nice। ये प्रॉब्लम में तक जेई में तो आया तो नहीं, बट अगर कहीं भी तुम्हारे सामने आए तो किस चीज का ध्यान रखना है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। देखो सब कुछ सेम है, यानी मैं स्किप कर रहा हूँ वो सारे कैलकुलेशन वाले स्टेप्स। द ओनली डिफरेंस इज जो कांस्टेंट हम 7 यहाँ पे आई थी वो इस बार 7 नहीं आएगी, ये 4 यहाँ से हटा दो, इट विल बी एक्चुअली 3 प्लस 3 sin 2x प्लस cos 2x। तो यहाँ तक तुमने रिड्यूस कर लिया और यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बात करेंगे केवल डिनोमिनेटर की, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर की रेंज मिनिमम एंड मैक्सिमम, so minimum value will be, only talk about denominator right now, it is 3 minus root 10 and the maximum value is 3 plus root 10 right। अब पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने जो मैक्सिमम वैल्यू थी 1 अपॉन मैक्सिमम वैल्यू लिखकर 1 अपॉन देखो 7 प्लस रूट 10 लिख दिया हमने, उसको मिनिमम बना दिया था, और जो कंपेरेटिवली छोटी वैल्यू थी उससे हमने डिवाइड कर दिया और उसको हमने मैक्सिमम बना दिया था। Will this be correct in this question as well? क्या इस बार भी ये करना सही होगा? I mean, no. क्या ये आंसर करेक्ट होगा? तो लगता है ऐसा लिखना बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज सबसे पहले 1/3 प्लस रूट 10 जो है वो 1/3 माइनस रूट 10 से छोटा नहीं है, क्योंकि जो 3 माइनस रूट 10 है वो नेगेटिव है। पिछली बार तुमने ध्यान दिया होगा कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, 7 प्लस रूट 10 भी पॉजिटिव था, 7 माइनस रूट 10 भी पॉजिटिव था, लेकिन इस बार हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव। अब रूट 10 अगर तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हो कोई बात नहीं, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो x की वैल्यू लिखी हुई है माइनस हाफ टू प्लस 1, सपोज x की वैल्यू माइनस हाफ टू प्लस 1, then what will be the range of 1/x? 1/x की रेंज क्या होगी? think, तुम्हें केवल रेसिप्रोकेट करना है। if some value lies between minus half and 1, what can you say about its reciprocal? तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? जिसका जहां पे आंसर आ चुका है तुम बेटा भी मत बोलना, बाकी लोग जहां पे भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हो मुझे सोच के बताओ। अगर कोई नंबर माइनस हाफ से 1 के बीच में है तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? टेक हेल्प ऑफ नंबर लाइन इफ यू वांट, कोई दिक्कत नहीं है। सर -2 से माइनस इंफिनिटी एंड और 1 से एंड 1 to 1। ये देखो हम इन रियल नंबर्स को कवर कर रहे हैं जो माइनस हाफ से 1 के बीच में, और हम इनको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस हाफ का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा -2, वो यहाँ पहुंच जाएगा राइट। माइनस हाफ का जो रेसिप्रोकल है वो -2 देखो यहाँ पहुंच गया। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, माइनस हाफ और 0 के बीच में सपोज मैंने दिया -1/4, -1/4 का रेसिप्रोकल और आगे पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? -4 पे पहुंच जाएगा। ये सब केवल तुम्हें ऑब्जर्व कराने के लिए है। जैसे जैसे तुम 0 के क्लोज जाओगे, जैसे जैसे हम 0 के और क्लोज जाते जाएंगे, हम कहाँ पहुंचते जाएंगे? हम माइनस इन्फिनिटी के आसपास पहुंच जाएंगे। देखो ये -2 से लेकर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में पहुंच जाएगा। अगर हम 0 से स्लाइटली पीछे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर which is slightly less than 0, and reciprocal of that number will be very close to minus it will be a very large number in magnitude but negative. 0 तो हम obviously substitute कर नहीं सकते because there is no reciprocal of 0,
बट इमेजिन कि तुमने 0 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा, अगेन यू कैन नॉट इमेजिन नंबर विच इज राइट आफ्टर 0, बट theoretically a number which is very small but positive, अगर तुमने उसका रेसिप्रोकल लिया तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ पहुंच जाएगा? ऑब्वियसली वो प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा. एंड नाउ यू टेक एनी नंबर, फॉर एग्जांपल तुमने हाफ ले लिया, हाफ का रेसिप्रोकल देखो 2 पे पहुंच रहा है, एंड फाइनली तुम 1 पे जाते हो. तो इस बार क्या हुआ, 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक के सारे पॉइंट्स आ गए. और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच के सारे पॉइंट्स आ गए. तो जब तुम रेसिप्रोकल कर रहे होते हो, डू नॉट इग्नोर 0. यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखो मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, 1/3 सॉरी 2 to 3. तो 2 to 3 का आंसर तो डायरेक्ट लिख दिया हमने. क्यों लिख दिया? बिकॉज इस रेंज में 0 नहीं आ रहा था. 0 ना आने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन अगर तुम्हारी डिनोमिनेटर में 0 आता है, अगर इस रेंज में कहीं 0 आ रहा है और तुम रेसिप्रोकेट कर रहे हो, तो फिर इन्फिनिटी तो आना ही है ना. बिकॉज 1 अपॉन अ वेरी स्मॉल वैल्यू विल बी अ वेरी लार्ज वैल्यू इन मैग्नीट्यूड. तो इसलिए अब देखो तुम्हारा जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, नंबर लाइन को देख के तुम बता सकते हो, आंसर इज -infinity to -2 for this question. -infinity to -2 union 1 to infinity, है ना. ये केवल मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए किया है. अब जो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था, इसमें डिनोमिनेटर रेंज आने के बाद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. सो y belongs to -infinity to reciprocal of the negative number. Negative number is 3 minus root 10. So -infinity to 1 upon 3 minus root 10 union positive number का reciprocal 1/3 plus root 10 to infinity. And this is our answer. Tell me if you have any doubts, because this is not trigonometry, right? This is very basic mathematics. कि अगर किसी रेंज को हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस कैसे आएंगे. If both terms are positive, basically both terms have same sign, do not bother, just reciprocate. छोटे वाले को पहले रख दो, बड़े को बाद में रख दो, आंसर आ जाएगा. Only think when you have 0 in between. अगर 0 आता है तो भी बहुत सिंपल है. नेगेटिव पार्ट का रेसिप्रोकल अलग कर लो और पॉजिटिव पार्ट का रेसिप्रोकल अलग कर लो और उनको यूनियन से कंबाइन कर दो. One relevant example is range of sin x. Sin x की रेंज देखो -1 to 1 होती है, राइट. और वहीं पे उसका जो रेसिप्रोकल है cosec x, उसकी रेंज क्या होती है? रिमेंबर, -infinity से -1 यूनियन 1 to infinity. और एक बार फिर तुम अगर नंबर लाइन पे इस चीज को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, -1 to 1 के बीच में 0 आ रहा है. तो जो नंबर्स -1 से 0 के बीच में है उनका रेसिप्रोकल किया और हमको -infinity से -1 की वैल्यूज मिल गई. और अगर हमने 0 से 1 वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल किया तो हमको 1 to infinity वाली वैल्यूज. दैट्स इट. आई होप अभी ये क्लियर होगा सभी को. हाँ सर. हाँ बेटा बोलो, डाउट है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो फिर सर मुझे ये पार्ट नहीं पता चला, ये जो आपने प्लॉट किया ना लाइन सर, ये नहीं समझा मुझे. पावर कट हो जाता है. उसके पहले वाले नहीं समझा होगा ना. तो मैंने ये समझाया जब तुम डिस्कनेक्ट हुए थे, मैंने समझाया था, अभी जो समझा रहा हूँ उसको समझो. sin x की रेंज -1 to 1 होती है, राइट. तो -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज को वो कवर कर सकता है. अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से अगर हमें cosec x की रेंज निकालनी हो, बिकॉज cosec x इज व्हाट, cosec x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x, 1/sin x, है ना. तो हम इसके अगर रेंज निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 0 आता है, तो हमें इस रेंज को ब्रेक करना होगा. -1 से 0 को सेपरेट करना होगा और 0 से 1 को सेपरेट करना होगा. अब -1 से 0 के बीच में जो वैल्यूज आती हैं उनको रेसिप्रोकेट करके ऑब्जर्व करो. फॉर एग्जांपल -1 का रेसिप्रोकल क्या है? -1. -½ का रेसिप्रोकल क्या होगा? -2. -1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3, है ना. तो क्या हो रहा है, इस पूरे पार्ट का रेसिप्रोकल क्या है? -infinity से -1. और ऐसे ही जो पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका अगर तुम 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2. 1/3 का रेसिप्रोकल 3. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिलेगा जो इंटरवल वो है 1 to infinity. सो -infinity से -1 यूनियन 1 to infinity. आंसर हो गया. ये एक्सप्लेन किया मैं.
तो इसी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है, ये जो आंसर निकाला, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है भाई, तो ये पार्ट तो हमने खत्म कर लिया, बट रेंज जो है अभी कुछ लोगों ने ऑब्वियसली एक ही पार्ट पढ़ा है, दूसरा पार्ट जब ट्रिग्नोमेट्री कवर होगी तो पढ़ाया जाएगा। तो रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रेंज से रिलेटेड जो है जेई में क्वेश्चंस आते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार फॉर्मूला वर्क करे, कभी कभी फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ी मैनिपुलेशन होती है, इसमें भी क्वेश्चंस कराए, और कभी कभी ये फॉर्मूले बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। जैसे रेंज का ही मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है जो सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन आ चुका है, सपोज वी हैव tan x पावर tan x to the power cot x to the power tan x, and we have cot x to the power cot x, right? And it is given that x is between 0 and pi by 4. x की वैल्यू 0 से pi by 4 के बीच में है, x 0 से 45 डिग्रीज के बीच में। तुम्हें इसको write these terms, arrange these terms in increasing order, sorting करनी basically. So which term is least and which term is greatest, इस ऑर्डर में इसको प्लेस करना है। x belongs to 0 to pi by 4 का मतलब क्या हुआ, और ठीक है अगर ये बात कुछ लोगों को ना पता हो क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट नहीं किया, तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे ये फैक्ट यूज करना होगा कि इफ x belongs to 0 to pi by 4, देन जो tan x होता है, tan x की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से 1 के बीच में होंगी। एट द सेम टाइम cot x की वैल्यू, क्योंकि cot x इसका रेसिप्रोकल है, तो 0 से 1 की रेंज का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 to infinity, है ना। तो जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मालूम नहीं पड़ी है, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा दे दी है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का बन गया। भाई ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गई ना। हाँ बताओ बेटा। कॉट का पावर कॉट फर्स्ट है, कॉट पावर कॉट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। देन कॉट का पावर tan x, ठीक है, फिर tan की पावर tan x, फिर tan की पावर cot x। tan x पावर cot x is smallest, या ओके। चलो ये बाकी लोग भी देखो, अगर तुम्हें सेम आंसर है तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट आता है तो बताओ। बेसिकली वन ऑफ द टर्म्स, एक टर्म इसमें से फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, एंड द अदर टर्म इज ग्रेटर देन 1। एक्सपोनेंट्स है तो ध्यान से, आउट ऑफ दीज 4 टर्म्स विच टर्म इज लीस्ट, सोच के देखो कौन सी टर्म सबसे छोटी होगी इन चारों में। टेक योर टाइम। हेलो, चलो पहले उनसे पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। शिवेन बता मुझे, तुझे क्या समझ में आ रहा है इसमें? सर tan x to the power tan x और cot x to the power cot x में जो मतलब जो वेरिएबल मतलब पावर में है उसी का मतलब एक्सपोनेंट हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो cot x to the power cot x का वैल्यू सबसे हाई जा सकता है। हाँ। तो मतलब तुम कह रहे हो कि cot x पावर cot x सबसे बड़ा होगा, राइट? ठीक कह रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट? सर tan x to the power tan x लग रहा है। tan x पावर tan x क्यों लग रहा है, रीजन? सर उसमें 0 पावर 0 आ रहा है। जीरो क्यों रख रहे हो? मतलब कुछ ऐसा ना जिससे तुम कैलकुलेट कर पाओ, 0 पावर 0 तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। tan x तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी है ना, इट इज अ फ्रैक्शन। Those who are solving it, trust me, this is not trigonometry, this is number theory। और भी तुम्हें नंबर थ्योरी में जाना है तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, जो एग्जाम में तुम कर सकते हो, लेट tan x equals to half,
हम tan x को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर tan x 2 हो जाता है तो cot x tan x हाफ हो जाता है तो cot x 2 हो गया, सेटिस्फाई तो हो ही रहा है, 0 से 1 के बीच में है और ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। अब जरा इन चारों टर्म्स को दोबारा लिखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1/2 to the power 1/2 tan x power tan x, then tan x power cot x 1/2 power 2, then cot x power tan x यानी कि 2 power half and then 2 power 2। अब तो बता सकते हो ना कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? Which out of these four is the smallest? First one. सेकंड Is वाला। it? Sir, first one. सेकेंड वन। अब देखो, अगर अभी भी कंफ्यूज आ रहा है तो हमको थोड़ा सा अपनी नंबर थ्योरी पे, एक्सपोनेंट्स पे वर्क करना पड़ेगा। फ्रैक्शन पावर फ्रैक्शन, √4 is greater than √2। यस यस, 1/2 पावर हाफ का मतलब है 1/√2, 1/2 स्क्वायर का मतलब 1/4, दिस इज √2 एंड दिस इज 4। क्लियर सी बात है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वैल्यू छोटी है, 1/4 इज द स्मॉलेस्ट, राइट? इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे पहले आएगा 1/4 स्मॉलेस्ट, देन 1/√2। ये तो ऑब्वियस हो गया, फ्रैक्शन है। √2 और 4 में ऑब्वियसली √2 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। तो इसका मतलब कौन सी टर्म स्मॉलेस्ट निकली? 1/2 स्क्वायर वाली, यानी कि tan x power cot x is the smallest term. Your answer was correct. और tan x power cot x smallest क्यों है? अब लॉजिकली सोचो, ये तो हमने एग्जाम के लिए कर लिया, चलो एग्जाम में तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई देख लिया तुमने कैसे सॉल्व किया तो चल जाएगा काम, मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर सोच भी लो ना अब कि क्यों ये स्मॉलेस्ट है, व्हाई tan x power cot x is smallest, व्हाई दिस हैपेंड? तो लेकिन ऐसे भी नहीं सोच सकते कि tan x 0 से pi/4 में हमेशा फ्रैक्शनल ही रह रहा है। होगा ना, क्यों नहीं होगा? 0 से tan pi/4 तो 1 फिर होता है। नहीं, मतलब अगर उसे कंसिडर नहीं किया तो अगर तुमने रेंज कंसीडर नहीं की तो कह रही हो? नहीं सर, मतलब अब 0 और pi/4 के सिर्फ बीच के वैल्यूज पकड़ो, एक्सक्लूडिंग देम, एक्सक्लूडिंग, क्योंकि यस आपने ब्रैकेट वो वाली लगाई है। करेक्ट करेक्ट, मैंने रखा नहीं बिकॉज 0 वाले केस में कुछ अनडिफाइंड हो जाता और तो pi/4 वही वाले सर। केस में कुछ इक्वालिटी आ जाती। हाँ, तो tan x वाले में फ्रैक्शनल नंबर रहेगा, tan x and cot x हमेशा मतलब नॉर्मल नंबर रहेगा, तो उनके पावर्स के साथ करके भी कर सकते हैं सेम तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो थियरी है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि किसी फ्रैक्शन पर अगर तुमने फ्रैक्शन रेज किया, नंबर तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, छोटा तो है ही, बट समहाउ अगर तुमने फ्रैक्शन पर कोई ऐसा नंबर रेज किया जो 1 से बड़ा है तो ये चीज बड़ी रहती है। पता है, फ्रैक्शन पर तुम जितनी छोटी पावर रेज करोगे वो वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। फ्रैक्शन जैसे 1/2, अभी 1/2 पे क्या हुआ? 1/2 पे हमने हाफ किया था एक जगह पर और एक जगह पे हमने रेज किया था 2। तो फ्रैक्शंस में उल्टा होता है, पावर तुम बड़ी रखोगे तो वैल्यू उल्टी छोटी आ जाएगी। बेसिकली ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट छोटा आता है, तो इस बात को ध्यान रखना। ये भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें बस एक चेंज था, जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो चेंज किया था, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करना उस एक्सरसाइज का तो अपने आप देखना, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई में, वो कहीं ना कहीं देखो बेसिक ही चीजें यूज करते हैं। और इस क्वेश्चन को रॉन्ग किसने कर दिया होगा? जिसने सोचा होगा हाँ भाई हाफ भी छोटा होता है, हाफ भी छोटा होता है, तो हाफ पावर हाफ तो सबसे छोटा होगा। तो जहां पर भी हमने मतलब जहां मैथमेटिकल नहीं हुए, हम थोड़े से सेंटिमेंटल हो गए कि हाँ भाई है ना कि स्मॉलर वैल्यू एंड द पावर इज आल्सो स्मॉलर, देन इट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ऐसा नहीं है, अगर स्मॉलर वैल्यू पर पावर स्मॉलर लगी हुई है तो हो सकता है कि वो किसी और केस से ग्रेटर हो, जैसे कि इस केस में ग्रेटर। फाइन, समझ में आया? तो ये हमारे बेसिकली रेंज वाले क्वेश्चंस थे। इसके पहले जिन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री मिस हुआ है उसको नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ ली है, मुझे बताओ तुम्हारी बुकलेट का स्टेटस क्या है अभी? एक्सरसाइज कहाँ तक पहुंच गई है? एक्सरसाइज 1 और 2 डिस्कस हो गई? सर 3 स्टार्ट करने वाला है। सर 1 हुआ है। सर 1 ही डिस्कस हुआ है, 2 सर आज करवाएंगे डाउट्स।
अभी 1 ही सर हुआ है। लेकिन हाँ सर, लेकिन जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है ना, उसमें वियर्ड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि 4 आंसर, मल्टीपल आंसर्स है ना, तो 2-3 आ रहे हैं, एक नहीं मिल रहा, या वैसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बीच में। हाँ सर, से मल्टीपल वाले जिसमें होते प्रॉब्लम आते हैं कि फिर चारों के मतलब जो भी 4 ऑप्शन से सबको सॉल्व करके वो लाना पड़ता है उस पे। वो तो करना ही पड़ेगा बेटा, तभी तो तुम्हें दिया है बुकलेट, क्योंकि तुम्हें वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें फेस करनी ही है इंडिविजुअली ना। तो प्रॉब्लम ये तो नहीं आ रहा ना, मतलब तुमसे क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जा रहा होगा, टाइम टेकिंग होगा, एक क्वेश्चन सर में ज्यादा एक टाइम लग दो रहा बीच में है जो डाउट्स हैं। हाँ सर, टाइम डाउट्स। टेकिंग सर क्वेश्चंस होता तो ये है कि फिर चारों ऑप्शन को सॉल्व करके वो प्रॉब्लम तक लाना पड़ता है ना। देखो बेसिकली होता क्या था, मतलब थियरी क्या है कि जो बुकलेट्स होती हैं उसके एक्सरसाइज 1-2 सॉल्व करवा देते हैं, एक्सरसाइज 3 सॉल्व कोटा में जब मैं था तो एक्सरसाइज 3 वो सॉल्व करने को मना करते थे कि भाई ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसको आप लोग रिवीजन टाइम पे जब हम नेक्स्ट ईयर 12th के बाद रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को तो सॉल्व करना। बट एडवांटेज क्या है कि हमारे पास सारी कोचिंग बुकलेट है, तो हम एक नहीं, हम कम से कम 2 बुकलेट सॉल्व करें और रिवीजन के टाइम के लिए अलग अपना खुद का मटेरियल भी है, अच्छा अपनी खुद की बुकलेट्स भी हैं। तो मैं एक एडवांटेज तुम ले सकते हो, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री फिनिश होगी तो एक बुकलेट नहीं, तुम एसएल लोनी के साथ रेफरेंस बुक के साथ कम से कम मिनिमम मैं कहूंगा 2 बुकलेट सॉल्व कर लोगे। और इतना कवर करने का मतलब है बियॉन्ड एडवांस, मतलब तुम एडवांस से भी आगे आ चुके हो, तो इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट टॉपिक, इसीलिए यूजुअली लोग क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो देखोगे क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दिया बिकॉज क्वाड्रेटिक बहुत इजी है, इनिशियल 3-4 लेक्चर्स बहुत इजी आते हैं, बट उसके बाद इवेंचुअली ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने का एडवांटेज ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हर जगह मिलेंगे, हर चैप्टर मिलेंगे, क्वाड्रेटिक में भी मिलेंगे, तो अब तुम्हें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी ठीक है, कोप अप विद इट, करोगे तुम, और टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेवल 2 लेवल 3 अभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, असाइनमेंट्स ऐसे रखे हुए हैं जिसको पिछले 10 सालों में किसी ने सॉल्व नहीं किया है पूरा, मतलब वो कोशिश की है, और कई बार तो ऐसा होता है मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ तो भी लोगों को समझ नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब वो ओलंपियाड से भी बेटर प्रॉब्लम्स कर सकते हो, वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। तो उस पर अगर आना है और जिसको वो चाहिए उसको वो जो काम मैं दे रहा हूँ वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके तुम ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करोगे। और जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें रेंज भी आने वाली है ना? नहीं नहीं नहीं, रेंज क्योंकि मैं शायद तब तक पढ़ाऊंगा नहीं, रेंज के ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आज हमने पढ़ा है ना, वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सर कल लेकिन पिछली टेस्ट बार की पढ़ा टाइमिंग क्या है? सर कल है ना टेस्ट। टेस्ट की टाइमिंग मैं चेंज कर रहा हूँ मॉर्निंग से हटा के। टेस्ट कल है। कौन सा टेस्ट? यही मेन लेवल टेस्ट सर ने बोला था ना। हाँ मेन लेवल टेस्ट है, लेकिन टेस्ट शायद कुछ लोगों ने भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाए, बेचारे बहुत उन्होंने ट्राई किया है तो पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, चल रही बात, मे भी कल ना हो टेस्ट, है ना, मैं भी ग्रुप पे अपडेट कर ग्रुप पे डाल दीजिए। मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा सर और एक दिन पहले डाल देना प्लीज। प्लीज सर। टेस्ट तो कल ही बोला था ना, तो फिर आज ही डाल दूंगा ना। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, टेस्ट जो है अब संडे को रखेंगे, मेन का एडवांस का बाद में रखते हैं। एक्सरसाइज 1 2 3 कब तक भेजना है? एक्सरसाइज 1 2 3 अब तुम्हारे पास मैंने एक्सटेंड कर दिया, अब तुम्हारे पास पूरे वीक का टाइम है, तुम वीक में आराम से करो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, एक्सरसाइज 1 2 3 आराम से करो। आज का होमवर्क क्या है? अभी वेट अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे भाई, टाइम हो गया क्या तुम्हारा? सर गौरव सर 2 मिनट बाकी है। हाँ सर वो गौरव सर अभी वो लेने वाले वो लेक्चर, गौरव सर लेक्चर लेने वाले? नहीं एक्सरसाइज 2 का डाउट सेशन सर ने 7:30 बोला था। अरे यार, अच्छा मैथ्स के लिए डाउट सेशन? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। एक्सरसाइज 2 का सर या तो आप उसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए ना। नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी एक डाउट सेशन रखूंगा, बिकॉज कुछ लोगों को हाई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट समझ में नहीं आ रहा, बता रहे हैं, तो मैं एक डाउट सेशन कल रखने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं एक डाउट सेशन रखता हूँ मॉर्निंग टाइम में, पहले एक लेक्चर रखना पड़ेगा उन लोगों का क्योंकि आज सेशन हो नहीं पाया, तो एक कवर अप लेक्चर तुम लोगों ने जो पढ़ा है एक लेक्चर वही होगा हाफ एन आवर का उन लोगों के लिए जो बाकी बैच बचा हुआ है, और उसके बाद मैं 1-2 घंटे का डाउट लेक्चर रखूंगा जिसमें तुम एक्सरसाइज जो भी तुम्हें जहां से भी क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लेना, ठीक है। सर टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग अभी मैं ग्रुप पे सारी चीजें सर डालता हूँ। आप ये सब ग्रुप पे डाल दीजिए। हाँ मैं सब ग्रुप पे डालता सर आप 2 क्वेश्चन देने वाले थे ना? हूँ। हाँ अब क्वेश्चन तो पहले बुकलेट्स कर लो, अब क्वेश्चन मैं तुम्हें कल देता हूँ डाउट सेशन में, ठीक है, क्योंकि अभी फिर तुम फिर फंस जाओगे उस क्वेश्चन में और बुकलेट नहीं कर पाओगे, तो अभी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है बुकलेट फिनिश करना, ठीक है। और भाई बच्चे जो लोग सॉरी जो लोग नया कुछ पढ़ने आए थे, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट मतलब कल ही से
कल ही से हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कल इवनिंग से। ओके ओके सर। चलो ओके देन, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर। ओके तो मैं